നമസ്കാരം. ഈ ഡിജിറ്റൽ കോൺക്ലേവിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചതാണ്. എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികൾ വന്നതിനാലാണ് നേരിട്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തത്. എന്നാൽ അഭിമാനമുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പരമാവധി നേരിട്ട് പ്രവർത്തകരുമായിട്ടും ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ ഡിജിറ്റൽ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന BJP IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ കോൺക്ലേവിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. BJPയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ K. സുരേന്ദ്രൻ, ഖുശ്ബു സുന്ദർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന, അവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ കോൺക്ലേവിലൂടെ നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കൂടുതൽ മേഖലകളെക്കുറിച്ചും സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാം. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നരേന്ദ്രമോദിജി നമ്മുടെ ആരാധനായ പ്രധാനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ജനത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരതത്തിന് ഒരു ആശങ്കയായിരുന്നു. പലരും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ 6 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കീഴിൽ 6 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ പോലും പ്രാപ്തരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അഭിമാനം നൽകുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും BJP IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡിജിറ്റൽ കോൺക്ലേവ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രീതി, ഈ പ്രവർത്തന പദ്ധതി കേരളത്തിന് പരമാവധി ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഡിജിറ്റൽ കോൺക്ലേവിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പലരും തിരിഞ്ഞു നോക്കി അല്ലെ, കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അദ്ദേഹത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പുതിയ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളാണ്. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കണം മാറ്റങ്ങളുടെ കേരളം എന്നത് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക്, നമ്മളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോക മലയാളികൾക്ക്, കേരളത്തിലെ ഓരോ മലയാളികൾക്കും കേരളത്തെ കുറിച്ച് പുതിയ ആശങ്കകളാണ്. അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ എന്താണ് കേരളം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഫ്യൂ വേർഡ്സ് പ്ലീസ്. കേരള തില്ലിയാണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. मेरे मित्रों, आज ही बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहां होने चल रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी डिजिटल भारत देखना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने नारा भी दिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया. और आज उस नारे ने पूरे देश भर में एक नया जान लेके आए. कोरोना काल में, कोविड-19 में मोदी जी सभी भारतवासी के लिए जनधन अकाउंट नहीं खुलती. ये कोरोना में क्या होता, चावल मिलती, फंड ट्रांसफर होती गरीब के पास, नहीं होता. जब जनधन अकाउंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में बोला, सेंट्रल में कोई भी बेनिफिशियरी स्कीम हो, ये जनधन अकाउंट माने अकाउंट के बिना नहीं हो सकता है, डिजिटली ही होगा. सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? यहां के सत्ताधारी LDF ने किया. मेरे त्रिपुरा में भी वही लोग बैठे हुए थे, बहुत आंदोलन किया रास्ते में. मोदी जी ने पैसा लेने के लिए गरीबों का अकाउंट खुलवा रहा है और अकाउंट में डालेगा, मोदी जी लेके बड़े बिजनेसमैन को दे देगा, इसलिए अकाउंट मत खोलो. लोग अकाउंट नहीं खुल रहा था. मोदी जी तो मोदी जी है. मोदी जी ने बोला इस डेट के अंदर नहीं खोलोगे तो जिस डेट नहीं करेगा इनसे विदाई कर लेंगे. चलो
आपको नहीं चाहिए स्कीम, नहीं देंगे। तब जाके भारत में हर स्टेट में हर गरीबों का अकाउंट था। इससे पहले अकाउंट किसकी होती थी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती थी, ऑफिसर की होती थी, कॉन्ट्रैक्टर का होता था, एस्टेब्लिश व्यक्ति की होती थी। अंत्योदय कोनो व्यक्ति का अकाउंट होती थी कि भारत में? बीपीएल परिवार की अकाउंट होती थी क्या? अधिकार नहीं है उनको, कि कोई गरीब है, वो अंत्योदय से है। ये तो मोदी जी जिस पार्टी से है, वो पार्टी किसका पार्टी है? अंत्योदय का पार्टी है, अंतिम व्यक्ति का पार्टी है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोला अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुंचना है। मोदी जी ने उसी दिशा में काम किया और जनधन अकाउंट करके हर देश में हर परिवार के पास अकाउंट है। 1947 में देश स्वाधीन हुई और देश के हर परिवार के पास अकाउंट कब खुली? जब मोदी जी आए। इससे पहले क्यों नहीं खुली? इससे पहले इसलिए नहीं कि गरीब को शोषण कैसे करेगा, अकाउंट खुल जाएगा तो इनके पैसा हाथ में कैसे बांटेगा, कमीशन कैसे रखेगा, यूनियन कैसे चलाएगा। आज मोदी जी ने एक नया भारत दिया। यहां भी जो हमारे सोशल मीडिया का आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, नया केरला का नारा दिया, न्यू केरला। सोशल मीडिया उसके माध्यम से केरला के साथ पूरे दुनिया को जोड़ना है और एक नया केरला बनाना है। मतलब डिजिटल केरला बनाना है, करप्शन फ्री केरला बनाना है। नहीं तो केरला में क्या 5 साल यूडीएफ 5 साल एलडीएफ, क्या इनके पास हमने उधार दे दिया क्या? केरला के लोगों ने जमींदारी इनका है क्या? इस जमींदारी जितना डिजिटल होगा इतना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी इनकी जमींदारी। इसलिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे दुनिया के पास हमारे बीच जो भी होता है वो सबके पास एक साथ शेयर हो जाता है। मेरे मित्रों, केरला में क्या समीकरण है? बोलता है इतने % क्रिश्चियन है, इतने % मुस्लिम है, इतने % हिंदू है। किसने बोला है? मैं मना नहीं कर रहा हूं। इसी मैथमेटिक्स की राजनीति होती है क्या? इसी में सत्ता आएगा जाएगा क्या? बिहार जात पात से बाहर निकल के, बिहार जात पात के बाहर निकल के डेवलपमेंट और रोजगार के ऊपर इलेक्शन हो सकता है, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो और सत्ताधारी पार्टी नहीं हो। उत्तर प्रदेश जो कि जात पात के नाम से जाना जाता था इलेक्शन, वहां जात पात के नाम से इलेक्शन नहीं हुई। होती तो जोगी जी सीएम नहीं बनता। वहां मायावती, मुलायम सिंह का बेटा, और एक ही बेटा तो है सर, वो कौन सा बेटा? और एक बेटा है सोनिया जी का बेटा। बुआ के साथ दोनों भतीजा इकट्ठा हुआ, लोगों ने समीकरण बनाया जो वहां बीजेपी जीत ही नहीं सकता, क्योंकि यादव मुस्लिम और कांग्रेस इकट्ठा हो गया है तो वहां सरकार तो नॉन बीजेपी का ही बनेगी। बना क्या? नहीं बना। तो जातीय समीकरण इलेक्शन जीता सकता है, मोदी के सामने जीती क्या? नहीं जीती। बिहार में जीती क्या? नहीं जीती। अभी बंगाल में दीदी जीतेगी क्या? जीतेगी। दीदी का विदाई हो चुका है, सिर्फ शहनाई बज रहा है। जैसे ही वोट होगी दीदी का विदाई हो चुका है। असम में भी इलेक्शन है। सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में सरकार 5 साल चली है।
अभी क्या होने वाला है, दोबारा बीजेपी के सरकार आने वाले हैं। पुडुचेरी में चला रहे थे, पहिया टूट गया है, और बाकी कहां रह गया, केरला में रह गया। रहना चाहिए क्या? आज तो हमने शपथ ली है, नया केरला बनाएंगे। एलडीएफ यूडीएफ रहते हुए बना सकते हैं क्या? आपको विश्वास है क्या? जब उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण नहीं चलती, बिहार में नहीं चलती, नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में 99% क्रिश्चियन है, वहां एनडीए की सरकार है, मोदी का सरकार है। मेघालय में 70 से 80% क्रिश्चियन है, वहां एनडीए की सरकार है। मेरे मित्र, वहां मुख्यमंत्री है कन्नड़ संगमा जी। नागालैंड में रियो साहब मुख्यमंत्री है, वहां 90% क्रिश्चियन है। तो किसने बोला जहां शंका लोगो है वहां बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं होती? प्रेत महात्मा ने बोला, कम्युनिस्ट ने, कांग्रेस के राहुल गांधी ने। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होती। बदल चुका है। ये मोदी का बदलाव हुआ भारत है। ये जात पात पंथ पे लड़ने वाला भारत नहीं है। आज भारत एक सर्वश्रेष्ठ देश बनना चाहता है, उस दिशा में नरेंद्र भाई मोदी काम कर रहा है। तो केरल पीछे कैसे रह सकता है? केरला पीछे कैसे रह सकता है? पीछे रहना चाहिए। अब देखिए ना, मैं जिस स्टेट से आता हूं, त्रिपुरा से, वहां भी तो हम लोगों को बोला जाता था 1.5% का पार्टी है, कैसे सरकार बनाएगा, क्या होगा इनका, इलेक्शन के बाद उनको कहां कहां विदाई करेंगे। कितना कुछ किया। 2 साल 3 महीने में देश में किसी पार्टी ने सरकार बना दिया। 0 से सत्ता में पहुंचने वाला एकमात्र भारतीय जनता पार्टी, और कोई पार्टी नहीं है, और आगे भी पैदा नहीं होने वाला है। केरला में तो सीट है, विधायक है, काउंसिलर है। त्रिपुरा में कुछ नहीं था। इसलिए ये जो एलडीएफ यूडीएफ का चक्कर है, काल का चक्कर बना हुआ है। घूमता है तो जाके 5 साल ये, घूमता है 5 साल ये। जैसे जमींदारी सौंप दिया केरला के लोग। अरे केरला के लोग मिडिल ईस्ट में जाके समुद्र, जो मरुभूमि में मेहनत करके नया दिशा और दशा दे सकता है, तो अपने राज्य में क्यों नहीं दे सकता? मेरे नौजवान भाई को मैं बोलूंगा, आज त्रिपुरा को देखिए। इतना कम समय में नरेंद्र भाई मोदी जी ने त्रिपुरा को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज त्रिपुरा में प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ केरला से ज्यादा है। कभी कल्पना किया था आप लोगों ने? प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ केरला से ज्यादा है। एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ केरला से ज्यादा है। टीचर स्टूडेंट रेशियो केरला से ज्यादा है। बीस साल के ऊपर महिला को शादी का जो मात्रा त्रिपुरा में 40% है, केरला में 5.2% है। मतलब केरला में 18 साल के नीचे महिला का शादी हो जाती है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। केरला में जो मुस्लिम बहनों हैं, उनको पता नहीं है, इनको 3 तलाक से मुक्ति किसने दिया? एलडीएफ ने दिया, यूडीएफ ने दिया, किसी ने नहीं दिया। दिया तो समाज सुधारक नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। 3 तलाक से मुस्लिम बहनों का मुक्ति दिलवाया। राजा राम मोहन राय ने सतीदाह प्रथा रद्द किया था।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह चालू किया था और आज की भारत में नरेंद्र भाई मोदी जी ने 3 तलाक को खत्म किया। बहुत बड़ी बात है बंधु, बहुत बड़ी बात है। मोदी जी के काल में ही 370 धारा विलुप्त कर दी गई है। आर्टिकल 35 मुझ देश से विताड़ित कर दिया गया है। 2 नया केंद्र शासित राज्य हुआ है और इन दोनों में जब इलेक्शन होती है लोकल बॉडी की तो मोदी जी के पार्टी की जीत होती है। क्या बोलता था? 370 में हाथ लगाएगा तो भारत में आग लग जाएगा। कहां आग लगी? कहीं नहीं लगी। जो कश्मीर में लूटने के खाने वाले जो 2-3 परिवार हैं उनको आग लगी, कश्मीर के जनता को नहीं लगी। तो इसलिए मित्रों मैं बोल रहा हूं, मोदी जी जिस दिशा में लेके जाना चाहता है, हम लोगों को, हर जवानों को, हर नौजवानों को उस दिशा में डिजिटल इंडिया को लेके जाना है। आज यहां एक सुंदर शुरुआत हो रहा है नया केरला की। मुझे बताया गया है जो 1 लाख लोग एक साथ इसमें रीच करता है, रीच करेगी। बहुत अच्छी बात है। इस सोशल मीडिया के थ्रू मोदी जी के हर बात सबके पास पहुंचना चाहिए बंधु। इससे बड़ा जो यंत्र है हमारे पास और कुछ नहीं है। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को मानता हूं, किंतु सोशल मीडिया सबके हाथ में है बंधु। और मोदी जी ट्विटर में पूरे दुनिया के साथ है, जवाबदेह है। और मैं एक बात शेयर करूंगा आप लोगों से, कभी भी सोशल मीडिया में नकारात्मक प्रचार नहीं करना। मोदी जी को देखना, कभी भी नकारात्मक प्रचार, नेगेटिविटी नहीं फैलाता है। ऐसे लगता है जो नकारात्मक करने से कुछ लोग रीच करता है, नहीं होता है। कम्युनिस्ट के साइट में मैं जब जाता हूं तो देखता पूरे दिन नकारात्मक, इनके पीछे लगना, उनके पीछे लगना, वही काम करता है। इसलिए कम्युनिस्ट की साइट के लोकप्रियता नहीं है। मोदी जी के साइट में कितना लोग आता है, कितने लोग रीच करता है, कितने फॉलोअर है? कम्युनिस्ट के साइट में है क्या? गांधी फैमिली के साइट में है क्या? नहीं है, क्योंकि वो लोग नकारात्मक ट्वीट करता है, नकारात्मक प्रचार करता है, भारत विरोधी मानसिकता रखता है। मोदी जी सकारात्मक प्रचार करता है, एक उसमें जोश रहता है, उसमें विश्वास रहता है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की हर नौजवान को मोदी जी के साथ जोड़ना है तो न्यू इंडिया, न्यू केरला बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। मेरे मित्रों, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। आज जो शुरुआत होने जाने वाला है वो इलेक्शन तक ही इसको सीमित नहीं रखना, इसको आगे भी बढ़ाना है। ऐसे में भी बहुत अच्छे दिन में यह इलेक्शन हो रहा है। कौन सी दिन हो रहा है? 6 अप्रैल को हो रहा है। 6 अप्रैल को यहां इलेक्शन हो रहा है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी के फाउंडेशन डे भी है। तो मैं मानता हूं इस फाउंडेशन डे में केरला के जनता एक नया केरला के लिए अपना मताधिकार प्रयोग करेगा। इससे केरला को शक्ति मिलेगी। केरला का जो पवित्र मिट्टी है, जो ये भगवान का धरती है, ये असुर के पास चला गया। इसको केरला के जनता के पास रहने दीजिए। जनता सर्वोपरि है। आज त्रिपुरा में जो सरकार बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये त्रिपुरा के आम जनता का सरकार है। त्रिपुरा के लोग आज महसूस करता है जो ये सरकार हमारी है। पहले सरकार किसकी होती थी? सीपीएम कैडरों का सरकार होती थी, क्योंकि पार्टी ऑफिस से सरकार चलती थी। आज जनता के दरबार से सरकार चलती है। दोनों में अंतर है बंधु।
मोदी जी पार्टी ऑफिस से सरकार नहीं चलाती। मोदी जी 130 करोड़ देशवासियों का मन की बात सुन के सरकार चलाती है, और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो ऑफिस है उससे सरकार चलाती है। और यूडीएफ वो तो कांग्रेस ही चलाता है, वो एक परिवार चलाता है, उसके बाहर कुछ नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है बंधु। भारत को इंग्रेज ने 200 साल शासन करने के बाद भी छोड़ना पड़ा। मुगल ने 600 साल लगातार शासन की, छोड़ना पड़ा। कहां से आ गया एलडीएफ यूडीएफ? ये नहीं टिकने वाला है। ये तो अपना नाम भी मुछवा दिया, कांग्रेस का नाम भी नहीं लेता, कम्युनिस्ट का भी नाम लेता। हमें सब जगह में एलडीएफ यूडीएफ। ये क्या है? एलडीएफ फुल फॉर्म भी निकलेगा नहीं, क्योंकि नियत साफ नहीं है। हमारे फुल फॉर्म में लिखा रहता है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग बार बार कहता है ये भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र भाई मोदी, ये डेवलपमेंट है, ये मेक इन इंडिया है, ये मेड इन इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया है। क्यों डिजिटल इंडिया होगा तो इन लोगों का राजनीतिक दुकानदारी बंद हो जाएगा। क्योंकि देखो हमारे त्रिपुरा में कम्युनिस्ट का सरकार जब रहे हैं तो कोई डिजिटाइजेशन नहीं कर रहा था। हमारे सरकार आए तो 175 सर्विस ऑनलाइन हो चुका है। त्रिपुरा में सिंगल विंडो सिस्टम लागू हुई है। कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो स्वागत में जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेगा और 7 दिन और 15 दिन के अंदर उसको सभी परमिशन मिलेगी। जिस डिपार्टमेंट से नहीं दिया उस समय के अंदर तो उस ऑफिसर को हर डे के लिए 1000 रुपया जुर्माना, 25,000 तक जुर्माना, उसको कोई माफ नहीं है। डायरेक्टर के नीचे कोई तो कुछ कर ही नहीं सकता। उस दिशा में त्रिपुरा चल पड़ा है। 36 डिपार्टमेंट डिजिटल हो चुका है त्रिपुरा में। और जागरूक त्रिपुरा के साइट हमने चालू कर दिया है। उसमें त्रिपुरा के कोई भी लोग उसमें जाएगा और जाके अपना डिटेल्स जब भरेगा, मेरा हाइट इतना है, मेरा आधार कार्ड इतना है, मेरा ये सब डिटेल्स है, तो अपने आप कौन सी बेनिफिशियरी स्कीम ले सकते हैं, क्या मिल सकता है, आपको दिखेगा। और इस तरीके से हम लोग एक डिजिटल त्रिपुरा बनाने की जो सपना देखा उसको पूरा कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये एक नया दिशा लेके नया केरला का जो सपना देखा उसको पूरा करेगा और केरला के नौजवानों का भविष्य निर्माण करेगा। नरेंद्र मोदी जी का नया भारत, नया केरला का सपना पूरा करेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।